नमस्कार, मैं एसके वाले, खेल अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय IIT पवई। फिट इंडिया स्कूल वीक सेलिब्रेशन चौथे दिन में सभी का स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ आज हमारे बीच में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडिशनल कमिश्नर श्रीमती विजयलक्ष्मी मैडम जी का फिट इंडिया स्कूल वीक सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में मैसेज भेजा है। वे मैसेज आपको सुनाएंगे, वे ध्यान से सुने। As part of the Fit India School Week program 2020, Kendriya Vidyalaya Sangathan has organized various programs. We are really fortunate to have with us Dr. Vijayalakshmi Madam, Additional Commissioner Academics, KVS Headquarters, New Delhi. Madam, please. Many greetings to all the KVS family members. Today we are all passing through tough times of COVID pandemic. But I am happy that all our scholastic as well as co-scholastic activities are going on smoothly and continuously with the undaunted spirit of our teachers and students, and of course support from parents. The impetus KVS gives to sports and physical activities is well known. The physical fitness programs assume immense significance in these testing times where our children are not coming to schools and are restricted to the four walls of their houses. As we are aware, physical fitness activities will not only ensure fitness but also bring cheer to their hearts. Unfortunately, this year we were not able to organize the sports and games activities that we normally organize at various levels every year. However, it is heartening that we are all gearing up for the second edition of the Fit India Week celebrations now. I am sure these activities will go a long way in enhancing the spirits of our young minds and improving their fitness. I hereby call upon all of you, and particularly our students, to actively participate in the Fit India School Week program and reap the benefits. All the best. धन्यवाद मैडम जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर केंद्रीय विद्यालय विद्यार्थी, अभिभावकगण और पूरे स्टाफ को मार्गदर्शन किया। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय IIT पवई द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज का वीडियो आपको दिखाएंगे। आप ध्यान से देखें, फॉलो करें।
होतो तू आता हॉरिझॉन्टल पप्पा तिथं बघ. इस कार्यक्रम के साथ आज डाइट और न्यूट्रिशन इसके बारे में जानकारी लेंगे। खेल के साथ आहार और पोषण की जरूरत होती है। इसी संदर्भ में हमारे बीच डॉक्टर देवाशीष दास अतिथि के रूप में उनका केंद्रीय विद्यालय आईटी पवई द्वारा स्वागत करते हैं। अभी मैं डॉक्टर देवाशीष दास के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वे 1 to 12 के पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय INS चिल्का में पूरी की है। उसके बाद MBBS MKCG मेडिकल कॉलेज उड़ीसा यहाँ डिग्री प्राप्त किया है। मास्टर डिग्री एम्स न्यू दिल्ली MD प्राप्त किया है। अभी इस वक्त कंसल्टिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में अंधेरी में अपनी क्लिनिक में कार्यरत है। इसके साथ अभी मैं
डॉक्टर दास जी को आमंत्रित करता हूँ, वे डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दें। नमस्ते मेरे नन्हे दोस्तों, देन बॉयज एंड गर्ल्स, फ्रेंड्स, टीचर्स and whoever is watching me on this platform. I hope you and your family are keeping well during these difficult times. Thank you to the faculty and the management of KVIT Powai for giving me this opportunity to speak to all of you on this very vital topic of diet and exercise and nutrition during this pandemic, that is coronavirus pandemic which is happening across the globe. I'm Dr. Devashish Das, a physician and consultant in Andheri East. So in next 10 minutes, I will try to highlight the importance of diet and nutrition and exercise in our lives and also during this corona times. I think diet and nutrition and exercise are very, very vital, not only for this pandemic time, but also to lead a very healthy lifestyle in for all of us. Whether it's a child, whether बच्चा हो या जवान हो या थोड़ा सा वृद्ध हो या वयस्क आदमी हो या बहुत ही वृद्ध आदमी हो, सभी को ही एक संतुलित भोजन, संतुलित व्यायाम करना चाहिए टू लीड ए हेल्दी लाइफस्टाइल। जब हम खाद्य से बोलते हैं, खाद्य मतलब खाद्य से हमको न्यूट्रिशन मिलता है ना। खाद्य न्यूट्रिशन जब हम बोलते हैं तो खाद्य से मेनली हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, माइक्रो में मेनली vitamins, minerals and other essential fatty acids. These macronutrients, carbohydrates, fat, proteins, they all give us energy. And micronutrients like vitamins, minerals, they are very, very vital. They are required in very small quantity, but are vital to carry out lot of important body functions in our body. And so we should have a balanced diet which contains around 50 to 60% of carbohydrates. रोटी चावल हो गया, बाजरा, ज्वारी, ये और ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। देन आपका प्रोटीन्स में आपका नॉन वेज है तो मच्छी, अंडा, चिकन, मटन, और अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर, सोया, छोले, राजमा, ये सब। और फैट्स में मेनली हमारा दूध से हम फैट लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, घी लेते हैं, एंड जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं इट्स वेरी हाई इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सो उसको भी 50 to 60% हमारे खाद्य में कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन्स एंड अराउंड 10% शुड बी ऑयल एंड फैट्स। इनको छोड़ के एवरी डे हमको इतना याद रखना चाहिए कि हम सभी को वी शुड ईट एटलीस्ट एक बार फ्रूट्स खाना चाहिए दिन में, जो भी सीजनल फ्रूट है। आज के दिन में सर्दी का दिन है तो यू गेट गुड ऑरेंजेस, संतरा, मौसम्बी, कीनू, ऑल्सो आजकल अमरूद भी अच्छा मिल रहा है मुंबई में। तो जो भी सीजनल मिलता है आप उसको खाइए, दिन में एक फ्रूट तो खाना ही चाहिए। फ्रूट जूस नहीं, अक्खा फ्रूट। फ्रूट्स को छोड़ के वी शुड ऑलवेज ऑल्सो टेक सम अमाउंट ऑफ नट्स। नट्स कैन भी आपके जैसे अखरोट हो गया या बादाम हो गया, सिंगदाना, या काजू हो गया, या पिस्ता, या आपके आलमंड्स हो गया। दे आर ऑल्सो वेरी हाई इन एसेंशियल फैटी एसिड्स। नॉन सॉल्टेड, हल्का सा उनको गर्म करके आप माइक्रोवेव या तवे पे गर्म करके एवरी डे यू शुड हैव 1 मुट्ठी ऑफ नट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ अस शुड टेक 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे वी शुड टेक, क्योंकि मिल्क इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, दूध बहुत ही जरूरी है। एंड इफ पॉसिबल बच्चों को एवरी डे दूध एंड अंडा खाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार दूध और अंडा, 1 से 2 अंडा डेली। ये सब हमको बहुत हेल्प करते हैं टू लीड ए हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हमारे बॉडी को, हमारा जो इक्विलिब्रियम है बॉडी का, एंड टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शंस एंड वेयर एंड टियर, दे आर हाईली एसेंशियल। मुझे पता है बच्चों को बहुत ही पसंद है जंक फूड्स, जैसे हो गया पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, है ना। आप ले सकते हैं उसमें, बट एक लिमिट तक, मे बी 2 हफ्ते में एक बार आपने ले लिया,
पिज़्ज़ा ले लिया या बर्गर ले लिया या फ्रेंच फ्राइज ले लिया, है ना, आप एक या कुकीज़ आप लेते हो थोड़ी देर तो चलेगा, बट 2 हफ्ते में एक बार जंक फूड। अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू टेक healthy, freshly made healthy food at home. Please avoid, especially parents who are working, avoid these preserved foods like your McCain and बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, रेडीमेड चिप्स हो गए, रेडीमेड पकोड़े हो गए, रेडीमेड सीख कबाब हो गए, रेडीमेड तवा पराठा हो गए, रेडीमेड आपके बहुत सारे चीज़ मिलते हैं मैकेन के, आप इनको दे आर ऑल विद प्रिजर्वेटिव्स, यू शुड ऑलवेज अवॉइड। वैसे भी मैगी वैगी भी जैसे मैंने बोला 2 हफ्ते में एक बार, इतना फ्रिक्वेंटली मैगी मत लीजिए, इट इज अगेन ए टाइप ऑफ फास्ट फूड। और जो बाहर मिलता है वड़ा पाव, समोसा, भज्जी, दे आर ऑल मेड ऑफ वेरी बैड ऑयल, पाम ऑयल से यूज, पाम ऑयल्स आर रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपको मन करता है हफ्ते 2 हफ्ते में घर में आराम से सनफ्लावर ऑयल लीजिए, राइस ब्रांड लीजिए, राई का तेल लीजिए या ग्राउंडनट ऑयल लीजिए, सनफ्लावर लीजिए, उससे आप अपने घर में बनाइए और ताज़ा फ्रेश खाइए, वो उससे मच बेटर रहेगा। अवॉइड डीप फ्राइड थिंग्स। अभी उसको छोड़ के आजकल जो कोरोना चल रहा है, स्पेशली हमारा इम्यूनिटी बहुत हाई होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली मार्केट में मिल रही हैं, बट आप घर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप दूध में अच्छा सा 1 चम्मच का हल्दी मिला के गर्म दूध को रात को सोते समय या सवेरे पी सकते हैं, इट गिव्स अस इम्यूनिटी। उस दूध में आप लहसुन को भी थोड़ा छोटा काट के आप डाल के ले सकते हैं। और अगर किसी को बहुत सर्दी हो गई है तो आप काढ़ा बना दीजिए, गर्म पानी में थोड़ा तेज पत्ता और लौंग, बाकी इलायची, तुलसी और अदरक और हनी हल्का सा डाल के उसको काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा मेंटेन करता है और सर्दी से बहुत अच्छा बचाव करता है। और स्पेशली बच्चों को अभी वेदर चेंज हो रहा है, खांसी होता है तो लोग डरते हैं कि कोरोना है, सभी को कोरोना नहीं है, नॉर्मली इट्स ए नॉर्मल वायरल फीवर और वायरल कोल्ड एंड कफ जो आएगा 3-4 दिन में अपने आप चला जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को या अडल्ट को होता है तो आप फ्रेशली अदरक को पीस के, मतलब घिस के उसका जूस निकालिए, 1:1 रेशियो में हनी के साथ मिला के सवेरे खाली पेट और शाम को खाली पेट पीजिए, खांसी आपका 3-4 दिन में पूरा ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे देसी नुस्खे, अगर आपका नाक जाम हो रहा है तो आप देसी घी अच्छा हल्का सा गर्म करके नाक के अंदर अच्छी तरह आप उसको दिन में सोते वक्त अच्छी तरह मसाज कर सकते हैं या 1-1 ड्रॉप डाल सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में जो हैं आप कर सकते हैं। अगर आप चाय लेते हैं तो शक्कर कम लीजिए, उसमें थोड़ा आप सिनामन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, थोड़ा अदरक का पाउडर और थोड़ा सा हल्का आप इलायची का पाउडर डाल के देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप साथ में जिसको डायबिटीज़ नहीं है थोड़ा चीनी की जगह गुड़ लेंगे तो और भी अच्छा है। और आजकल तो देखिए आप, एक वो आया हनी, इतना फ्रेश नहीं है, तो आप थोड़ा इन सब से अच्छी तरह रिसर्च करिए, जो अच्छा हनी हो वही लीजिए, अदरवाइज ये सब अडल्ट्रेटेड और चीनी मिलाए हैं। तो एट द एंड आप हमको अगर कोरोना से या किसी भी बीमारी से अपने आप को बचाना है, उसका सबसे अच्छा मंत्र है आप हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, चावल, रोटी, फ्रूट्स, नट्स एवरी डे, साथ में कुछ प्रोटीन्स, एंड बाकी आप ये तो खाना पीना हो गया, बट एक्सरसाइज, व्यायाम भी उतना ही नेसेसरी है। आप बच्चे हों, वयस्क हों, जवान हो, डिपेंडिंग आप किस एज में हो, आपका उसके हिसाब से आप एक एटलीस्ट दिन में अपने लिए 1 घंटा निकालिए। आप योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए या खेलिए बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, आपको जो पसंद हो। एक दिन में आपको 1 घंटा अपने लिए खुद के लिए निकाल के आपको व्यायाम करना है। अगर लेडीज घर के बाहर नहीं जा पा रही हैं, घर के अंदर ही म्यूजिक ऑन करके डांस करिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप दिन में अगर आधा घंटा डांस भी कर ली कंटिन्यूसली, आपका बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से एक हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन और व्यायाम डेली करेंगे और अवॉइड करेंगे जंक फूड्स और बाहर का खाना भी कम खाइए। और दूसरा चीज़ है पानी छान के पीजिए या बॉयल करके ठंडा करके पीजिए, और फ्रिज का पानी अवॉइड करिए क्योंकि यूजुअली फ्रिज के पानी से ठंड जल्दी पकड़ता है। और अगर आप एक स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, एक बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन के साथ हर दिन 1 घंटा व्यायाम करिए, खुश रहिए, योगा करिए, अपने दोस्तों से बातें करिए, अकेलापन कभी हो तो
फ्रेंड्स को कॉल करिए, पिताजी माताजी से बात करिए, फ्रेंड्स से बात करिए, बट डिप्रेस बिल्कुल मत होइए। जिंदगी बहुत वाइटल है एंड एक हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन लेंगे तो हम लोग अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद सर, आपने हमेशा केंद्रीय विद्यालय आईटी पवई को मार्गदर्शन करते हैं, इसीलिए केंद्रीय विद्यालय आईटी पवई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, विद्यार्थी और पूरे स्टाफ की ओर से फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसे राइटिंग और पोएम राइटिंग कंपटीशन होगा। थीम है फिटनेस बीट पैंडेमिक। ये हिंदी में या इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं। इसी संदर्भ में निबंध लेखन और कविता दोनों के बारे में आपको हम वीडियो दिखाएंगे, ध्यान से देखें। बाद में आप हिंदी या इंग्लिश में कविता या निबंध लिखकर अपने कक्षा अध्यापक के पास जमा करें। निबंध लेखन। बच्चों, निबंध तो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते तथा लिखते आ ही रहे हैं। यहाँ हम निबंध को और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि निबंध किसे कहते हैं तथा इसका क्या अर्थ होता है। निबंध का अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना। इसका अर्थ ये हुआ कि निबंध द्वारा हम अपने विचारों, भावों तथा सुझावों को संयमित यानी कि निश्चित शब्द सीमा में प्रभावशाली भाषा एवं तथ्यों की सहायता से प्रकट करते हैं। निबंध के विषय अनंत हो सकते हैं, यानी कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अब निबंध के प्रकारों को जानते हैं। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। बच्चों, वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है, जैसे किसी मेले, त्योहार, ऋतु आदि का वर्णन करना। दूसरा, विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय का विवरण दिया जाता है, जैसे विशेष स्थानों, स्मारकों, घटनाओं, यात्राओं का विवरण प्रस्तुत करना। तीसरा, भावात्मक निबंध। बच्चों, भावात्मक निबंध में भावों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें किसी विषय जैसे मित्रता, परोपकार, मानवता आदि विषयों पर लिखने वाला अपने मन के भावों को प्रकट करता है। चौथा, विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विषय के पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ आदि के विषय में विचार व्यक्त किया जाता है। ये निबंध देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषय हो सकते हैं विद्यार्थी और अनुशासन, आतंकवाद, प्रदूषण की समस्या आदि। निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे निबंध किसी एक उद्देश्य अथवा किसी एक विषय को ही लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं सरस तथा लेख सुगठित होने चाहिए। विचार क्रमबद्ध तथा आपस में संबंध रखने वाले होने चाहिए। निबंध को व्यर्थ विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक हो सके वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का
पूरा ध्यान रखना चाहिए। निबंध में किसी महापुरुष के कथन, कविता की कुछ पंक्तियों अथवा सूक्तियों का समावेश करके निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उनके अनुसार ही विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। अब आप स्वयं निबंध लिखने का अभ्यास करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे संपूर्ण विश्व आज जूझ रहा है। हम सभी को मिलकर कोरोना वायरस को हराना होगा। आज का हमारा वीडियो है कोरोना वायरस पर एक बहुत ही खूबसूरत कविता। हमारी कविता का शीर्षक है मिलकर कोरोना को हराना है। मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे के हाथ नहीं लगाना है, मिलकर कोरोना को हराना है। बार बार अच्छे से हाथ धोने जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है। बचाव ही इलाज है, यह समझाना है, मिलकर कोरोना को हराना है। कोरोना से हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देश हित में सभी को यह कदम उठाना है, मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। दोस्तों, हम सभी आप सभी की शुभ मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जगह जगह बस एक ही बात, कोरोना कोरोना। स्कूल है बंद, मुश्किल है सब कुछ, करो ना डरो ना कोरोना से डरो ना कोरोना से डरो ना। हाथ को सोप से धोए डरो ना मुंह को ढककर खांसे छींके डरो ना। भीड़ से हम दूर रहे डरो ना। घर में मस्ती करे डरो ना कोरोना से डरो ना कोरोना से डरो ना। हम कहे सलाम नमस्ते डरो ना। हाथ न मिलाओ कुछ हफ्ते डरो ना। ट्रेन प्लेन या हो बस डरो ना। थोड़े दिन ना करो सफर डरो ना कोरोना से डरो ना कोरोना से डरो ना। हम इसे फैलने ना देंगे डरो ना। मिलके इसे हम रोकेंगे डरो ना। आज का चौथे दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। आगे के कार्यक्रम के लिए हम कल मिलेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।